Hello students, today I am going to explain Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi of class 12 Vista. Tishani Doshi is a writer and dancer of Welsh Gujarati origin. She was born in Madras, India in 1975. She studied at North Carolina. She did her masters from the Johns Hopkins University, Baltimore. She moved to London in 1999, becoming assistant to the advertising department of Harper's and Queen magazine. In 2001, she returned to India, where she became a dancer with the choreographer Chandra Lekha. She also works as a freelance journalist, contributing to various newspapers such as The Guardian, The New Indian Express, and The National. She has published 6 books of poetry and fiction. Her essays, poems, and short stories have been widely anthologized. She currently lives on a beach between 2 fishing villages in Tamil Nadu with her husband and 3 dogs. Before we begin, I would like all of you to like and subscribe my channel English and Science Zone to watch my upcoming videos. Thank you one and all. Journey to the End of the Earth is a travelogue. The narrator gives an account of her journey to Antarctica under the program Students on Ice, led by Geoff Green in the Russian vessel Academic Skolarsky. Under this program, high school students are taken to the ends of the world and provided inspiring educational opportunities which will help them to encourage in developing a new understanding and respect for our planet. So what Tishani Doshi says that students are a part of the program led by Geoff Green, which allows them to understand what happens in Antarctica and also to encourage in developing a new understanding. तो यहाँ तिशानी दोषी कहती हैं कि जॉफ ग्रीन स्टूडेंट्स के संग प्रोग्राम्स करते हैं और उनको वर्ल्ड्स के दोनों एंड्स पर या तो पोल्स पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको काफ़ी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके हमारे प्लैनेट के बारे में और एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके हमारे प्लैनेट के लिए. इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी ए बिग थ्रेट to human existence. It inculcates a new understanding in them. Geoff Green thinks that high school students are the future policy makers. He offers the future generations a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act and can help in saving the earth from ecological dangers and the effects of global warming. तो हम देखते हैं मिस्टर जॉफ ग्रीन जो हैं वो बच्चों को हमेशा प्रोग्राम्स में शामिल करना चाहते हैं. हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जिसकी उम्र करीब 15, 16, 17 साल की है उनको वो हर एक अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारी अर्थ को देखें, समझें और उसको कैसे सेव करना है उसके बारे में वो सोच सकें और वो फ्यूचर जनरेशन्स को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ऐसी उम्र पर जब वो अच्छी से हर नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके और फिर उसके ऊपर एक्ट कर सके और अर्थ को इकोलॉजिकल डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से उसको सेव कर सकें. उनको पता है आज के बच्चे ही टुमारो सिटीज़न हैं तो वो इस बात को बहुत अच्छी से समझेंगे अगर उनको वो उनके सामने ये सब चीज़ें अच्छी से दिखाई जाए, उनको एंटार्क्टिका लेकर जाएं और वहाँ पर उनको आइस जो रैपिडली मेल्ट हो रही है उसको दिखाई जाए तो उनको डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जल्दी से समझ में आ जाएंगे. द नरेटर सेज इफ़ वी वांट टू प्रेजेंट द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, Antarctica is the place to go. The study of this region is useful to us because the world's geological history is trapped in Antarctica. तिशानी जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं अगर हमको अर्थ का पास्ट देखना है या प्रेजेंट देखना है या फ्यूचर के बारे में समझना है, एंटार्क्टिका वो जगह है जहाँ पर सबको जाना चाहिए क्योंकि एंटार्क्टिका के आइस के नीचे पास्ट हमारा प्रिजर्व्ड है, प्रेजेंट हम लोग आइस में देख रहे हैं और जो मेल्टिंग आइस है
वो हमको फ्यूचर का अंदेशा दे देती है। तो अगर हमें किसी भी रीजन को अच्छी से स्टडी करना है टू फाइंड आउट पास्ट, प्रेजेंट एंड future of the earth, we must go to Antarctica. The author started her journey in a Russian research vessel, Academic Skolesky, bound for Antarctica. Her journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. She traveled over 100 hours in combination of car, aeroplane and ship before she set foot on the Antarctic continent. तो नरेटर बताती हैं कि जब वो एंटार्क्टिका के लिए रवाना हुई तो वो एक रशियन शिप में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उन्होंने बहुत सारे टाइम जोन्स क्रॉस करे। 100 आवर्स वो ट्रैवल कर चुकी थी, कार में, एरोप्लेन में, शिप में, और फिर कहीं जाकर वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पहुंच सकी थी। द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट एंटार्क्टिका। द ऑथर स्टेड देयर फॉर 2 weeks. It is a place which stores 90% of the Earth's total ice volumes. It has no trees, billboards, or buildings. The visual scene ranges from the microscopic to the mighty. Days go on and on in 24-hour austral summer light. Silence pervades everywhere. It is broken only by an avalanche of carving ice sheet. तो मिसेस तिशानी दोशी अंटार्कटिका क्यों गई? वो वहाँ पर और जानकारी लेने के लिए गई थी और वो 2 weeks वहाँ पर रही एंड उनको वहाँ पर पता चला कि 90% जो अर्थ का आइस है वो एंटार्कटिका में स्टोर्ड है। एंटार्कटिका पूरा आइस से फिल्ड अप है। वहाँ पर ना कोई ट्रीज़ दिखेंगे, ना कोई बिल बोर्ड्स जो एडवर्टाइज़ करते हैं कुछ ना कुछ, या बिल्डिंग्स कुछ वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी। और विजुअली अगर हम लोग दूर दूर तक देखें तो हमको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीज़ें दिखेंगी विद द माइक्रोस्कोप नेचुरली, या तो हम लोग को बहुत बड़े बड़े एनिमल्स लाइक द पोलार बेयर दिखेंगे। पता ही नहीं चलता क्योंकि डेज दिन ब दिन ऐसे पास हो जाते रहते हैं। बहुत ही कम समर लाइट होती है वहाँ पर, हर जगह एकदम साइलेंस है क्योंकि दर इज नथिंग ऑफ लाइफ ओवर देयर। और कभी कभी कोई आवाज़ आती है तो वो स्नो या आइस ब्रेक होकर नीचे गिरने की आवाज़ आती है और वहाँ पर एकदम साइलेंस है। She wondered how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. Geological phenomena help us to know about the history of humankind. 650 million years ago, a giant southern supercontinent, Gondwana, did exist. It was centered roughly around present-day Antarctica. तो जब नरेटर वहाँ पर गई तो उनको पता चला सालों पहले एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही लैंड मास से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स जब पास हो गए, 650 मिलियन ईयर्स अगो, जब नरेटर ने जियोलॉजिकल फेनोमेना वहाँ पर स्टडी किया तो उनको पता चला 650 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसका नाम था गोंडवाना, और वो काफ़ी एंटार्क्टिका के आजू बाजू में ही उसकी प्लेसमेंट थी। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर देन, देयर वर अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. Humans had not arrived on the global scene yet. Gondwana thrived for 500 million years. Then came the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals began. At that time, the land mass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. यहाँ पर नरेटर कहती हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो क्लाइमेट एकदम वार्म था, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, फ्लोरा था, फौना माने एनिमल्स थे वहाँ पर। ह्यूमंस तब तक सीन पर अराइव नहीं हुए थे और गोंडवाना 500 मिलियन ईयर्स अगो काफ़ी फ्लावर्स, ट्रीज़, एनिमल्स से भरा हुआ था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब सारे डायनासोर्स किसी वजह से वहाँ पर मर गए और तब उसके बाद मैमल्स का एज वहाँ पर शुरू हो गया और धीरे धीरे वो लैंड मास में भी पानी भरने लगा और धीरे धीरे सारा लैंड मास जो एक ही था वो सेपरेट होकर आज जो हम ग्लोब पर देख रहे हैं उस तरह का वो बनने लगा। ऑल दिस टुक प्लेस वेरी वेरी स्लोली एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर ऑल दिस टू हैपन। The most hotly contested debate of our time is whether West Antarctica ice sheets will melt entirely or not. If we want to study the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go, as it holds 500,000-year-old carbon records,
trapped in its layers of ice। तो यहाँ पर नरेटर क्या कहना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा डिबेट बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सब लोग कहते हैं कि एंटार्क्टिका की आइस शीट पूरी मेल्ट हो जाएंगी या नहीं मेल्ट हो जाएंगी या पूरी नहीं मेल्ट होंगी। उसके बारे में सब लोग को बहुत सारा नॉलेज अभी भी नहीं है। नेचुरली अगर वो मेल्ट हो जाएंगी तो सारे ओशन वाटर का लेवल हाई हो जाएगा, सीज में ज़्यादा पानी हो जाएगा, हर जगह फ्लड्स आ जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली प्रॉब्लमेटिक टाइम। एंड शी सेज अगर हम लोग को अर्थ का पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर जानना है तो हम लोग एंटार्क्टिका जाना चाहिए, क्योंकि एंटार्क्टिका की जैसे जैसे लेयर्स ऑफ आइस बनती गई उसमें कार्बन रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स उस आइस में ट्रैप हो चुका है। तो जैसे जैसे हम लोग लेयर्स ऑफ आइस मेल्ट होंगी वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने मिलेंगे। जो चीज़ें मर चुकी है और आइस के बीच में ट्रैप हो चुकी है वो सारे प्रिजर्व हो चुके हैं। तो उसमें से हम लोग काफ़ी हमको नॉलेज मिलेगा ऑफ व्हाट हैपेंड इन एंटार्क्टिका। Antarctica has a simple ecosystem and lacks biodiversity. It is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the lives of the sea animals and birds of the region. It will also affect the global carbon cycle. The burning of fossil fuels has polluted the atmosphere. It has created a blanket of carbon dioxide around the world. So, what the author says over here, she says, अंटार्कटिका में बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है क्योंकि बहुत कम वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं, एंड इट इज़ अ वेरी परफेक्ट प्लेस टू स्टडी स्मॉल चेंजेस एंड हाउ स्मॉल चेंजेस कैन कॉज बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट ने कहा है कि ओजोन लेयर इसी तरह अगर डिक्रीज होता गया तो बर्ड्स और एनिमल्स सबको बहुत सारा वो अफेक्ट करेगा। जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जला रहे हैं लाइक पेट्रोल डीजल ये सब हम लोग जला रहे हैं उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट हो गया है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड इट्स अ हैवी गैस, इट डजंट मूव अप, एंड सो द लोअर लेयर्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और आइस मेल्ट हो जा रही है। इट इज़ increasing the global temperature which is visible at Antarctica. When we see icebergs melting away, it shows how minor changes in the atmosphere can cause huge effect. If the global temperatures keep on increasing, the human race may be in peril. So what she says, because of the increasing carbon dioxide, heat is increasing. Because of increasing heat, बहुत सारे countries के temperatures इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से एंटार्क्टिका में भी जो परमानेंट आइस थी वो भी मेल्ट होने लगी है। दैट शोज़ दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इफेक्ट थोड़े सालों बाद हमको दिखाएंगे। शी सेज अगर ग्लोबल टेम्परेचर ऐसे ही इंक्रीज़ होता रहा तो ह्यूमन बींग्स को भी एक दिन बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। The author gives us an example of phytoplankton to show how small changes in the atmosphere can be threatening. The microscopic phytoplankton are single-celled plants. They nourish the entire southern ocean's food chain. They use the sun's energy to assimilate carbon and supply oxygen. Any further depletion in the ozone layer may affect this functioning and indirectly affect the lives of all marine animals. सो द ऑथर सेज कि फाइटोप्लैंक्टन ऐसी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी एक प्लांट होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है जो सन की एनर्जी लेकर अपना खाना बनाता है। इट कैन एसिमुलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द साइंस एनर्जी। और वो फाइटोप्लैंक्टन हज़ारों एनिमल्स का फूड है। अगर इसी तरह ओजोन लेयर डिप्लीट होता रहेगा तो वो फाइटोप्लैंक्टन भी अपना काम नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे मेराइन एनिमल्स जो फाइटोप्लैंक्टन पर जिंदा हैं वो भी धीरे धीरे मर जाएंगे। When the author returned, she was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. Walk on the ocean was the most thrilling experience of the visit. All the 52 persons on board put on breathable, waterproofing clothing and sunglasses. They climbed down the gangplank and walked on the ocean. They were walking on a meter-thick ice pack. Under the ice pack, there were 180 meters of living, breathing salt water. Seals were enjoying themselves in the sun on ice.
The narrator was wondering about the beauty of the place. She wished it would become a warm place again, as it used to be millions of years ago. It happens, the results can be catastrophic. तो जब नरेटर वापस आई तो वो सोच रही थी कितना ब्यूटीफुल प्लेस है अंटार्कटिका, और जो सारे स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे वो सबको एक बार वॉक ऑन द ओशन करवाया गया, और वो बोल रही थी हमारा पूरे विज़िट का वो सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पर 52 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सब ने वाटरप्रूफ क्लोथिंग पहन ली और सन ग्लासेस पहन लिए, क्योंकि आइस की जो ग्लेयर है उस आइस को हमारे नुकसान पहुंचा सकती है. सो दे ऑल वोर दोज क्लोथिंग एंड सन ग्लासेस, और वो लोग आइस की तरफ गए और वो ओशन पर वॉक करने लगे. जो एंटार्क्टिक ओशन है वो पूरा आइस से कवर्ड था, उस आइस पर वो वॉक करने लगे, और वो लोग वॉक कर रहे थे. बहुत सारे मीटर्स थिक आइस पैक पर वो लोग वॉक कर रहे थे, और आइस पैक के नीचे 180 मीटर्स डाउन उनको पता था कि वहाँ पर सॉल्ट वाटर है, और सॉल्ट वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जिंदा हैं. एंड उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सील्स बैठे थे, और सील्स अपने आप सन में एंजॉय कर रहे थे आइस पर. और नरेटर सोच रही थी कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इसको हमको ऐसे ही प्रिजर्व करना चाहिए. अगर इसकी आइस मेल्ट हो जाएगी तो इसकी ब्यूटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. और उसने सोचा फिर से अगर वो वार्म प्लेस बन जाए जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो वार्म प्लेस थी, तो जो रिजल्ट्स होंगे पूरी अर्थ पर बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होंगे, बहुत ही डेंजरस होंगे, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वो अर्थ को कॉज कर देंगे. सो अर्थ विल बी इन अ वेरी वेरी डेंजरस पोजिशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. सी यू.